नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है। कल भी इसी वक्त बड़ी खबर आई थी। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाली खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से ये आदेश जारी किया गया था और ये खबर आई कि दोहरी नागरिकता के मामले में, ब्रिटिश नागरिकता के आरोप में कर्नाटक का भाजपा का कार्यकर्ता जो लगातार उत्तर प्रदेश में मुकदमेबाजी कर रहा है, उसके मुकदमे में राहुल गांधी पर रायबरेली में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है लखनऊ बेंच ने। और सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट ने अपनी स्वीकृति दे दी है, उस पर मुहर लगा दी है यूपी सरकार के निवेदन पर। लेकिन 24 घंटे के भीतर ये खबर पलट गई है। खबर ये है कि जब ऑर्डर टाइप हो रहा था, जिस वक्त ऑर्डर देने के बाद टाइप जब किया था, ऑर्डर टाइप हो रहा था, उसी वक्त जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने रोक दिया। ऑर्डर टाइप होते समय ही बीच में रोक दिया और कहा कि नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं होगी राहुल गांधी पर। उनको 2014 के एक आदेश का रेफरेंस मिल गया। उस रेफरेंस को उन्होंने देखा तो उनको लगा कि एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश उन्होंने दिया है, इसमें उनसे चूक हुई है और उन्होंने तत्काल रोक दिया। फिर ऐसा भी आज के दौर में जुडिशरी में अगर कोई जज कर रहा है तो भी बड़ी सुखद है बात और आश्चर्य की भी बात है कि आदेश जो है टाइप होते होते रोक दिया गया। भाऊ को जोड़िए, मैं खबर दिखा दूं और फिर भाऊ के पास चलेंगे। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले विघ्नेश शिशिर को सुनवा दीजिए। ये लोग लंबी लंबी बातें कर चुके थे, अभी सब मामला खुलेगा चर्चा में, सुनवाइए इनको। The matter had come up before the Honorable Allahabad High Court at Lucknow bench, wherein we had filed an application under Section 528 of BNSS, seeking direction from the Honorable Allahabad High Court Lucknow bench to the police, Kotwali Police Station, Raebareli, to register an FIR against Sri Rahul Gandhi with regard to his British nationality case. The Honorable High Court has found very solid proof, concrete evidences in this case, because for the first time, the Ministry of Home Affairs, Government of India, Citizenship Wing, Foreigners Division had bought the top secret file with regard to the British nationality of Sri Rahul Gandhi on two occasions. One is the 9th of March 2026, 19th of March, and second on 6th of April 2026, wherein the Honorable High Court has perused those records, seeing which there are some shocking revelations with regard to his British nationality. We are thankful in that manner to the Honorable Prime Minister of India and the Honorable Union Home Minister of India for submitting the files for making zero tolerance policy as a priority of Government of India towards illegal foreign nationals who are in the country. With regard to this, finding solid, credible evidences, the High Court has prima facie held that there is some truth in this matter, and the direction has been given to the Kotwali Police Station to register the FIR forthwith and conduct investigation in this matter. Also, the Standing Council for Uttar Pradesh Government has made submission that the Uttar Pradesh Government would like to transfer this investigation to any central agency like the Central Bureau of Investigation. That plea of the Uttar Pradesh Government also has been considered by the Honorable High Court, and a direction has been issued that the investigation be conducted by the Central Bureau of Investigation. Sir, every day I am being threatened, my family members are being threatened. Highest possible security I would like to urge the Government of India, Ministry of Home Affairs to provide me, because now the real case starts. The FIR has to be filed, police have to conduct investigation. Because I am the complainant as well as the primary informer in this case, lot of evidences are known only to me. Some of the evidences are not even told in the court because the matter was so top secret and sensitive. So I request the Government of India to kindly enhance my security to the maximum possible level on all India basis, since I am fighting various cases, not only with regard to Rahul Gandhi, also regarding Srimati Priyanka Gandhi also in Kerala and Wayanad. इसके पास सिक्योरिटी ऑलरेडी है, इनहेंस करने कह रहा है। ये इसको भागवत वाली सिक्योरिटी दे दो भाई। इसको तो संघ की सिक्योरिटी चाहिए। संघ ने कहा था ना हम बॉर्डर पे भेज सकते हैं हमारे लोगों को, लेकिन आशीष जी इसके पूरे वक्तव्य में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। सबसे पहले ये कह रहा है कि गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को मैं धन्यवाद देता हूँ, पीएम नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री को, उन्होंने इतने सॉलिड एविडेंसेस इकट्ठा किए हैं और वो एविडेंसेस सामने रखे हैं कोर्ट के। कोर्ट को लगा इसमें तथ्य है और कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर दी। पॉइंट नंबर 1।
उसके बाद उसने कहा कि मुझे सिक्योरिटी इसलिए चाहिए कि कुछ तथ्य सिर्फ मेरे को ही पता है और किसी को पता नहीं। हम्म, जब तुम्हें ही पता है और किसी को पता नहीं, तो गृह मंत्रालय ने क्या किया? फिर तुम्हें गृह मंत्री बना लिया जाए, सारे तथ्य तुम ही रखते हो तो। गृह मंत्री क्या, इसको डोभाल की सब जगह बिठाना चाहिए। दूसरी बात, सबसे हाँ, अहम, यदि गृह मंत्रालय के पास ये एविडेंस है कि राहुल गांधी 2 पासपोर्ट रखते हैं, तो गृह मंत्रालय अभी तक हाथ पे हाथ धरा क्यों बैठा रहा? क्यों किसी के एफआईआर करने का, क्यों किसी का कंप्लेंट करने का इंतजार करता रहा? आज तो कोई आदमी बंगाली मुसलमान, पूना में आपने केस देखा होगा, बंगाली एक परिवार था पश्चिम बंगाल का, उनके परिवार के सारे लोग फौज में सर्विस दे चुके हैं। क्योंकि वो बंगाली है और मुस्लिम, हिंदी वो बंगाली बोलते हैं, तो उनको, मुस्लिम है और बंगाली बोलते हैं, तो उनको तुरंत बांग्लादेशी करके रात को पुलिस घुस गई थी उनके घर में, ये होलीगंज को लेकर पूना के केस में। विदेशी नागरिक तो ऐसे ढूंढे जाते हैं हमारे देश में। लेकिन राहुल गांधी लगातार पार्लियामेंट में बैठ के ललकार रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट उनके पास है, और ये इंफॉर्मेशन गृह मंत्रालय के पास है कि इनके पास 2 पासपोर्ट है। उसके बाद गृह मंत्रालय हाथ पे हाथ धरा क्यों बैठा है? इतना नाकारा गृह मंत्रालय है क्या? और जो प्रबुद्ध लोग सुन रहे हैं, उनको भी पता है यदि इतनी सॉलिड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती तो गवर्नमेंट छोड़ती क्या राहुल गांधी को? तो ये जो सज्जन बोल रहा है, इसके पास वो डॉक्यूमेंट कैसे आए? इसको कैसा मालूम कि गृह मंत्रालय ने के पास पूरा इंफॉर्मेशन है और गृह मंत्रालय ने दिया कोर्ट को? क्या कोर्ट ने ये बात इससे साझा की है कि क्या इसने कहीं नकली तो कागज नहीं भेज दिए? ये भी इन्वेस्टिगेट करना होगा कि गृह मंत्रालय से आए ना। यहाँ तो नकली कोर्ट के वारंट लेके भी लोगों ने कैदियों को छुड़वाया है, वो भी केसेस हुए हमारे देश में। तो गृह मंत्रालय के पास एक सॉलिड एविडेंस है कि राहुल गांधी के पास 2 नागरिकता है, और गृह मंत्रालय हाथ पे हाथ धरा बैठा है। उनको चुनाव भी लड़ने देता है, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनने देता है, उनको भारत जोड़ो यात्रा निकालने देता है, उनको सारा एक भारतीय होने के नाते जो कुछ अधिकार है वो अधिकार देता है। और वो तो भारतीय है ही नहीं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जो ऊपर आदमी जो बता रहा है यहाँ बैठकर, ये एक पॉइंट है। दूसरा, कोर्ट को यदि इसमें सब कुछ मिल रहा है तो सीधा कोर्ट नोटिस देके राहुल गांधी को बुला के ये बोलेंगे एविडेंस है, प्रूव करो, काम खत्म, कोर्ट सजा देगा। इसमें अब सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? वही तो कह रहे हैं, इसमें तो जस्टिस विद्यार्थी छोड़िए, इसमें तो सूर्यकांत के सामने जाओ कि सूर्यकांत चीफ जस्टिस तुरंत आनंद फानंद बैठे और भगा दे। आप देखिए अभी वकील को सुनिए, वकील को सुनिए। अभी तो रोक वाले पे हम आते हैं, मुख्य खबर तो रोक वाली है, वकील को भी सुनिए जरा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 1-1.25 घंटे के बहस के बाद, सभी पेपर देखने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट संतुष्ट हो गई कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी आदेश की कॉपी निकल जाएगी, साइन हो जाएगा तो दर्ज कराएगी, तथा ये भी छूट दिया है कि किसी भी नेशनल एजेंसी से इसकी जांच कराएं, बृहद जांच कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र है उसके लिए, और बड़ी से बड़ी एजेंसी, नेशनल एजेंसी जांच करा करके जो भी तथ्य आता है, चार्ज बनता है, उसके आधार पर प्रोसीडिंग होगी। सब हो गया, आदेश भी लेके आए होते, बाहर बाइट दे दिए। अब जरा दिखाते हैं खबर आपको, लाइए भैया हेडलाइन खबर दिखाइए अभी की ब्रेकिंग, इस समय की ब्रेकिंग है। राहुल गांधी पर एफआईआर के आदेश पर रोक, हाई कोर्ट जज ने फैसला बदला, बिना नोटिस एफआईआर को उचित नहीं माना। चलिए जरा खबर के भीतर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। मामला दोहरी नागरिकता से जुड़ा है। कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर जारी आदेश में यह जानकारी दी। कोर्ट ने बताया कि शुक्रवार 17 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसमें याची समेत केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की जरूरत है, ये पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर और आज मामला खुला, यहाँ पर सिर्फ याची का वकील नहीं है, यहाँ केंद्र और राज्य के वकील भी हैं। गजब तमाशा बनाया है। क्या राहुल को नोटिस जारी करने की जरूरत है? वकीलों ने नोटिस जारी करने की कोई जरूरत नहीं बताई। इसके बाद
एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया कि उनका कोई नोटिस जारी करने की नहीं जरूरत है, आप एफआईआर दर्ज करने का आदेश दो। आगे चलिए, आगे। आदेश टाइप होने से, जो आदेश दिया वो आदेश टाइप होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फिर से फैसले को परखा। उन्होंने पाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2014 में एक निर्णय में कहा था कि एफआईआर दर्ज करने की मांग वाले प्रार्थना पत्रों के खारिज होने पर पुनरीक्षण याचिका ही पोषणीय है। ऐसे मामलों में प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस भेजना जरूरी है। इसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बगैर फैसला करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल की तारीख तय कर दी है अगली सुनवाई के लिए। हटा दीजिए। यहाँ पर इस मामले में सिर्फ एक वकील नहीं है, केंद्र और राज्य के वकील भी हैं और मामला अटका है एफआईआर पे केंद्र और राज्य। ऐसे मामलों में भाऊ मैं एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पे आता हूँ। विघ्नेश शिशिर जैसे किसी भी मोहरे को, कार्यकर्ता को, पन्ना प्रमुख, जिलाध्यक्ष को खड़ा करने की जरूरत क्या है? आप जब आर्थिक कदाचार करते हैं, फिनेंशियल कोई गड़बड़ी करते हैं, करप्शन करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, मुकदमा कौन करवाता है? ईडी दर्ज करवाती है ना, ईडी दर्ज करवाती है। सीबीआई मुकदमे दर्ज करवाती है बहुत, जब भी कोई गंभीर मामला आता है जांच के लिए सीबीआई। राहुल गांधी एलओपी, इनकम टैक्स करवाता है। एलओपी, इस देश का एलओपी, वो ब्रिटिश नागरिक है, दोहरी नागरिकता लेकर के बैठा इस देश का एलओपी। इसमें विघ्नेश शिशिर ये कौन है? न 3 में, न 13 में, न 23 में, ये कौन है विघ्नेश शिशिर? ये अमित शाह का होम मिनिस्ट्री दर्ज करवावे ना एफआईआर। तो सीधा सरकार नोटिस दे, स्पीकर नोटिस दे, सरकार स्पीकर को बताए, स्पीकर नोटिस दे कि आप दोहरी नागरिकता के साथ संसद में कैसे बैठे हैं। 2 मिनट का काम है। और डिपोर्ट करे राहुल गांधी को, सीधा नोटिस दे कि आप ब्रिटिश के नागरिक है, आपको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा सकता है। तो राहुल गांधी शरण जाएंगे कोर्ट के फिर। हिसाब में दोहरी ना, ये ऐसा मामला चलना चाहिए। यह उल्टा मामला है, कोई भी छिछोरा उठ के खड़ा हो जाता है कि ये फला विदेशी है, मेरे पास प्रूफ है, वो कुछ कागज रख देता है सामने और फिर उसमें केंद्र सरकार, सब गृह मंत्रालय सब लग जाता है और फिर बोलते हैं कि गृह मंत्रालय ने इन्वेस्टिगेट किया, उनको कुछ प्रूफ पाया। ये खुद ही बोल रहा था याचिका करता, वकील भी बोल रही थी कि कोर्ट को जायज लगा कुछ कागज देखने के बाद। तो कागज कौन से हैं वो पब्लिक करें, क्योंकि ये तो कोर्ट का मामला है, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला है। ये देश का एलओपी यदि ब्रिटिश नागरिक है तो ये ओपन होना चाहिए, बिल्कुल ओपन होना चाहिए। तो घोर अपराध है ये तो। लेकिन हो तो ना, थाईलैंड में स्कूटी चलाते हुए विजुअल तो तुम पब्लिक कर दोगे और विदेशी नागरिक राहुल गांधी तो नहीं पब्लिक करोगे। देशद्रोही हो सकता है अगर ऐसा है तो। मतलब ये काम तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गृह मंत्रालय को एफआईआर तुरंत दर्ज करनी चाहिए। गृह मंत्रालय इस पे पार्टी बनता है। बेसिकली सबसे पहले कंप्लेंट इसने गृह मंत्रालय को की थी, दोहरी नागरिकता है। गृह मंत्रालय ने इन्वेस्टिगेट किया होगा, दोहरी नागरिकता पाई होगी, ठोक देंगे। लेकिन नहीं पाया होगा तो उलझा के रखना है ना, तो सीबीआई में केस जाएगा। कोर्ट बोलेगा सीबीआई करो, सीबीआई खूब जाएगा। कई सीबीआई के अधिकारी लंदन जाके मौज करेंगे अभी ढूंढने हुए, और एक दिन धीरे से क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं मिला। धीरे से उसकी कोई खबर भी नहीं छपेगी कहीं। हमने ईडी को देखा बड़ी बड़ी बातें करते हुए और फिर हाथ ऊपर करते हुए। सीबीआई के भी वही हाल है, कई एजेंसियों के वही हाल है। नैरोटिक ब्यूरो को यही हाल है। शाहरुख खान के लड़के को उठा लिया था, क्या हुआ? बस वसूली गैंग हो गया ये सब। तो जज साहब ने कहा कि हाईकोर्ट ने तो, हाईकोर्ट की तो रूलिंग में बड़ा क्लियर कट 2014 की जो लिखा है उसमें तो व्यवस्था दी है उन्होंने। तो राहुल गांधी को नोटिस दे। बड़ी गजब स्थिति है। मतलब ऐसा मामला कहीं पर भी ओपन एंड शट केस है ये, बिल्कुल जो है साफ दिख रहा है
ये विघ्नेश ऐसे मामले, मतलब बताइए, ये मामला कि भारत के खिलाफ किसी ने देशद्रोह किया, जासूसी, फलाना आदमी आईएसआई का जासूस, ये कंप्लेन लेकर के आता है कोई तेलंगाना से, कोई हैदराबाद से, कोई आंध्र प्रदेश से। भाजपा का क्या है भाई, पन्ना प्रमुख हूं मैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि पंजाब में एक आदमी है वो जो है आईएसआई का जासूस। अरे तू तेलंगाना में है, तुझे हैदराबाद का नक्शा पता है कि नहीं पता है? तू आप बता रहा अरे है भाई, कि अरे तुझे पता है तो तू कोर्ट क्यों एफआईआर मांग रहा है? सीधा गृह हाँ। मंत्रालय को लिख, क्या गृह मंत्रालय जाए? और गृह मंत्रालय उसको उठा लेगा। हाँ, तुम्हारा अपना उसमें मंत्रालय कोर्ट है, क्या जाओ। करेगा? क्योंकि मुकदमे में उलझाना है और बदनाम करते हुए घूमना है। जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक ये बताना है कि ये दो, जैसा उद्धव सरकार को वसूली सरकार, वसूली सरकार, 100 करोड़ की सरकार, कहां हो गया भाई 100 करोड़ की सरकार? पूरा केजरीवाल की दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, क्या हो गया भाई भ्रष्टाचार? कौन सा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार कुछ, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है। ये एफआईआर चुनावी मंचों के लिए करवाना चाहते हैं। चुनावी हाँ, मंच बिल्कुल। में कंटेंट खत्म हो चुका है, नरेंद्र मोदी के पास कंटेंट खत्म हो चुका है, ये कंटेंट के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ, तो क्या कंटेंट हमारे चाहिए। कोर्ट कंटेंट क्रिएटर हो गए क्या? हाँ, है कंटेंट के सत्ता लिए। सत्ता पक्ष के लिए कंटेंट क्रिएटर हो गए। कंटेंट। गजब। मोदी जी ये बाकी न्यायपालिका का ये कार्य आप पहली बार समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको मैं याद दिला पहले दूं। पहले पहले दबे छुपे होता था, अब खुल के हो रहा है। नहीं, मैं आपको याद दिलाऊं, एक जस्टिस जॉय माल्या बागची हैं, सूर्यकांत के साथ हाँ, बैठते हैं बेंच में, हाँ, सीजीआई की। बागची ने तो जो है कोर्ट में सुनवाई के दौरान केस था, इन पर जूता, गवई पे जूता चलने का मामला। गवई हाँ, पर जूता चलने के मामले में ये हुआ कि इस पर उस पर केस चलना चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उस मामले पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा नहीं, इस मामले को अपनी मौत मर जाने दो, इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे तो ये मामला बढ़ेगा। लोग इस पर वीडियो बनाएंगे, जो यूट्यूब वाले हैं वो वीडियो हाँ, बनाएंगे इस पर। शेयर भी एल्गोरिदम लेंगे। एल्गोरिदम भी बताया कि हाँ, एल्गोरिदम ऐसा होता है कि फिर उस पर व्यूज आएगा, वो व्यूज इस पर लाएंगे और वीडियो बनाएंगे, तो इस पे अपनी मौत मर जाए तो इतना तो जितना एल्गोरिदम आपको और हमको नहीं पता, उतना तो जस्टिस बागची को पता है सुप्रीम कोर्ट में उनको मैंने एल्गोरिदम। बोला, उनको तो रिटायरमेंट के बाद तो डिजिटल मार्केटिंग का बढ़िया कंपनी खोल देनी चाहिए। अच्छी तरह से जानते हो। हाँ उनको हाँ, चीफ जस्टिस पे जूता फेंका ये मैटर नहीं था, इससे यूट्यूब व्यू वालों की व्यूअरशिप मिल जाएगी, ये मैटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगा। गजब है। क्योंकि जिसके ऊपर फेंका था वो दलित था, अम्बेडकरियन था, तो फिर उसको उसकी अहमियत थोड़ी है, होगा चीफ जस्टिस भाई। और यही किसी सवर्ण पे फेंका गया होता और कोई हाईकोर्ट का भी जज होता तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ जाता अलग से। कैसा होगा? चलिए खैर, अब ये मतलब खबर एक बड़ी एक एक, एक वकील जो पता नहीं वकालत कितनी करता है और भाजपा की प्रवक्ता ही कितने करता है, उनकी पीटने की खबर थी, हाँ, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट सीरियस हो गया हाई कोर्ट, कि मामला हाई सीरियस है। कोर्ट, हाई हाई कोर्ट कोर्ट। हाँ, सीरियस हो गया। नहीं, केस तो हाई कोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मेंशन हुआ कि आज एक सुप्रीम कोर्ट के वकील पे हमला हुआ है एक लोअर कोर्ट में। हाँ 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 तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। हाँ। मतलब जो बिना पैंट पहने कैमरे पे बैठ जाता है चड्डी पहन के अर्धनग्न अवस्था में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंकता है तो उसको छोड़ दो, निगलेक्ट करो। हाँ, ये है दोहरा चरित्र हर एक का। बड़ा गजब का मामला है, बहुत गजब चीजें सामने आ रही है रोज। चलिए खैर, अभी ये बड़ी खबर थी, हमने आपको बता दी, बस इसलिए यही इतना ही ड्यूरेशन है। इजाजत दीजिए हमें, जब बड़े वीडियो होंगे फिर बड़े वीडियो बनाने मजबूरी हो जाती है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।